Hello students, in today's lecture we will do the questions from 8 to question number 12 of miscellaneous exercise. Okay, so let us continue with the topic. The question number 8 is for show that for any sets A and B, A is equal to this, A is equal to A intersection B union A minus B. You have to show it. So using properties you can do this. So I'm solving this question. I'm taking right hand side here. The right hand side is A intersection B union A minus B. Clear? I am taking the right hand side. Now this is equal to A intersection B को ऐसे लिख दो as it is union. अब आपको पता है कि A माइनस B को कैसे लिखते हैं, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी A माइनस B की वैल्यू क्या होती है A इंटरसेक्शन B डैश. तो आपने ये चीज याद रखनी है. इसको A माइनस बी का मतलब होता है A बट नॉट B. A बट नॉट B का मतलब होता है A इंटरसेक्शन B डैश. तो मैं इसकी जगह पे A इंटरसेक्शन B डैश लिख रहा हूँ, राइट. अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करूँगा. सो A इंटरसेक्शन ये चीज कॉमन आती है लेफ्ट हैंड साइड से. सो मैं इसको लिख रहा हूँ A इंटरसेक्शन, यहाँ बच जाता है B यूनियन, यहाँ बच जाता है B डैश. सो दिस इज इक्वल टू A intersection. What is the value of B union B dash? This is, as you know, its value is universal set. And universal set और A में क्या common आता है? That is A, which is equal to left hand side. So this is the first part, right? So let us do the next part of this question. You have to prove that in this question you have to prove that A union B minus A, it is equal to A union B. A union B, right? So here I am taking the left hand side to prove it. So what is the left hand side? Left hand side is A union B minus A. अब आपको पता है जो माइनस वाली डिफरेंस वाला प्रॉपर्टी है वो क्या है A यूनियन. इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा B इंटरसेक्शन A डैश. B बट नॉट A, B बट नॉट A, नॉट A मतलब A कॉम्प्लीमेंट. अब इसमें मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा. आई एम यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हियर. A यूनियन B intersection A union A dash, A union A dash, right? So I am using the distributive property. पहले मैंने A को इसके साथ ओपन किया, फिर A को इसके साथ ओपन किया. अब इसको क्या लिखूंगा मैं A union B. अब ये आपके पास है बीच में इंटरसेक्शन, और A union A dash क्या होगा, A और A डैश का यूनियन क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा. तो इसको यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, और यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, बेसिक सेट होता है, इसलिए इसमें इंटरसेक्शन क्या आएगा, दैट इज A यूनियन B. सो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8. नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स show that A union question. I am doing the question number 9 here now. Question number 9 is question number 9 first part. For any sets A and B,
you have to show in first part A union A intersection B. This is very easy. A union A intersection B, that is equal to A. You have to prove that this is equal to A. This is the first part. So I am taking the left hand side again here. This is very easy. This is A union A intersection B. Right? So you can use the distributive property here. Open this. This is A union A intersection A union B. A union A की वैल्यू A होगी, इजी, एंड इंटरसेक्शन A यूनियन B. अब आपको पता है A यूनियन B और A में क्या कॉमन होगा. A यूनियन B और A में क्या कॉमन होगा. इंटरसेक्शन इसका A होगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. Similarly, second part is prove that you have to show that A intersection A union B, A intersection A union B, it is equal to A. ये भी A के बराबर प्रूव करना है. So let us take the left hand side here. Left hand side is A intersection A union B. When we use the distributive property, open this bracket, we get A intersection A union A intersection B. अब A intersection A तो A ही होगा, union A intersection B. अब A और A intersection B का union करके देखिए, right? तो आपके पास आंसर A आ जाएगा, which is equal to right hand side. So this is the question number 9. Let us proceed the next question. Next question is show that A intersection B. Question number 10. We are doing question number 10. Question number 10 is show that A intersection B is equal to A intersection B is equal to A intersection C need not imply B is equal to C. Need not imply B is equal to C. यानी कि अगर A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के बराबर है तो ये जरूरी नहीं है कि B और C इक्वल होंगे. ठीक है, तो इसमें आपने काउंटर एग्जांपल देना है. सो लेट अस टेक वन एग्जांपल हियर. लेट A इज इक्वल टू 1, 2 और B आपके पास है 2, 3. ठीक है जी, 2, 3. सो A इंटरसेक्शन B में क्या कॉमन आ रहा है, 2. ठीक है, सो और A इंटरसेक्शन C में भी 2 कॉमन आना चाहिए. इनके 2, 4 लिख दो, राइट. सो हियर A इंटरसेक्शन B इट इज इक्वल टू, A और B में क्या कॉमन आ रहा है, 2, और A इंटरसेक्शन C में भी क्या कॉमन आ रहा है, इट इज 2. दे आर इक्वल, बट B जो है वो C के बराबर नहीं है. इट मीन्स जरूरी नहीं है कि B C के बराबर हो कि आपके पास ये वैल्यू इक्वल है. A इंटरसेक्शन B अगर A इंटरसेक्शन C के बराबर है तो जरूरी नहीं है कि B और C इक्वल हो. सो यू हैव टू गिव द एग्जांपल हियर टू वेरीफाई दिस. क्लियर? सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 is let A and B are the two sets if A intersection X is equal to B intersection X and A union X is equal to, and this is equal to phi,
and A union X is equal to B union X, right? So for some set X, show that A is equal to B. Show that A is equal to B. आपको शो क्या करना है कि A B के बराबर है. क्लियर? सो मैं इसको भी प्रॉपर्टीज से प्रूव करूंगा. तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन समझिए. दिस क्वेश्चन इज A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू 5, यानी कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 5 के बराबर है, राइट? एंड A यूनियन X जो है B यूनियन X के बराबर है. तो हमें शो करना है कि A B के बराबर है. सो लेट अस प्रूव इट. मैं यहां से लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं. लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास? A है. अब क्या A को मैं क्या लिख सकता हूं? A को मैं लिख सकता हूं A यूनियन 5. कैन वी राइट लाइक दिस? A और 5 का यूनियन करेंगे A आएगा, और 5 की वैल्यू आपके पास A इंटरसेक्शन X है, तो मैं इसमें A इंटरसेक्शन X फिल कर रहा हूं. क्लियर? अब मैं इसमें क्या लिखूंगा? इसमें मैं A इंटरसेक्शन X की वैल्यू B इंटरसेक्शन X भी लिख सकते हैं. सो आई एम राइटिंग हियर B इंटरसेक्शन X. अब मैं इस स्टेप के बाद अगला स्टेप होगा, मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करूंगा बाय ओपनिंग इट. सो दिस इज A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन X. जब मैंने इसको ओपन किया तो मेरे पास ये आ गया. अब A यूनियन X किसके बराबर है? B यूनियन X के. तो इसमें मैं क्या फिल कर रहा हूं? B यूनियन X फिल कर रहा हूं, राइट? अब B यूनियन X और X यूनियन B एक ही बात है. अब मैं क्या कर रहा हूं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं X यूनियन B. अभी आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे. यूनियन B जो है राइट साइड से, दोनों साइड से कॉमन है, तो मैं इसमें यूनियन B राइट साइड से कॉमन लेके यहाँ मेरे पास A बच गया, इंटरसेक्शन मेरे पास X बच गया, राइट? सो A इंटरसेक्शन X आपको पता ही है कि दिस इज 5. सो दिस इज 5 यूनियन B आ गया. अब 5 और B में यूनियन क्या होगा? B होगा, एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन. देखिए आपको A B के बराबर प्रूव करना है. तो पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली A को मैं लिख सकता हूँ A यूनियन 5. 5 को मैं, हो सकता है तो आप इस स्टेप को मिस भी कर सकते हो. आप सीधा ये स्टेप, इस स्टेप के बाद सीधा ये स्टेप लिख सकते हैं, ठीक है? सो मैंने क्या किया? 5 की वैल्यू A इंटरसेक्शन X फिल की, बट A इंटरसेक्शन X और B इंटरसेक्शन X सेम है, इसलिए मैंने ये वैल्यू फिल कर दी. फिर इसके बाद मैंने इस स्टेप के बाद मैंने ये वाला स्टेप जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ पे ओपन किया इसको A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन X. ओपन किया A यूनियन X को, फिर B यूनियन X के बराबर लिखा बिकॉज दिस इज गिवन. आगे हमने क्या किया? B यूनियन X को X यूनियन B लिखा बिकॉज दिस इज कॉम्यूटेटिव. यूनियन इज कॉम्यूटेटिव. सो X यूनियन B इस साइड है A यूनियन B. अब यूनियन B दोनों साइड में है, तो मैंने वो कॉमन निकाला, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, यूनियन B कॉमन निकाला, यहाँ बच गया A इंटरसेक्शन X. अब A इंटरसेक्शन X की वैल्यू 5 है, इट इज गिवन. सो 5 यूनियन B किसके बराबर होगा? B के, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट? सो इट इज प्रूव्ड दैट A is equal to B. Now let us do the last question. I am doing the last question, that is question number 12. Question number 12 is, this question is also very easy. Find sets A, B and C such that A intersection B, B intersection C and C intersection A
are non-empty sets, are non-empty sets, right? And A intersection B intersection C it is equal to 5, ये एम्प्टी होगा। अब ध्यान से हमने इस क्वेश्चन को देखना है, हमें लिखा है फाइंड सेट्स A B and C, means you have to give the example of these three sets A B and C such that it fulfill this condition, right? So I am taking the example, let A is equal to 1, 2 and B is equal to 2, 3 and C is equal to 1, 3. I am taking these sets. देखिए आपने एग्जाम्पल लेना है इसमें A, B और C के, ताकि ये कंडीशन फुलफिल हो। अब आप देख रहे हो कि A इंटरसेक्शन B किसके बराबर है इसमें कॉमन कोई? यस, 2 इज द कॉमन। B इंटरसेक्शन C किसके बराबर है? B और C में क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, नॉन एम्प्टी है, दिस इज नॉन एम्प्टी, दिस इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी। सिमिलरली C intersection A, it's what is the common between C and A? This is 1 here. So these are all non-empty. It fulfills the condition. Now when we take the common and here A intersection B is non-empty, B intersection C is non-empty, C intersection A is non-empty, and this A intersection B intersection C, इसका मतलब है तीनों में क्या कॉमन है? देखिए 2 इसमें कॉमन है, 3 इसमें कॉमन है, 1 इसमें कॉमन है, तीनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इसका मतलब दिस इज 5। सो यू कैन गिव दिस एग्जांपल, इट इज वेरी इजी टू वेरीफाई दिस कंडीशन of this question. So this is the question number, this was the question number 12. Okay, so this is all about the miscellaneous exercise. So if there is any problem then you can comment and I will or we will explain or give our best, right? Thank you. Okay students, there is one student who is having the problem in question number 6. So I am repeating that question again. So let us do the question number 6. The question number 6 is of miscellaneous exercise. I am doing the question number 6. So question number 6 is assume that PA is equal to PB. PA is equal to PB, ये assume कर लिया है, and you have to prove to show that A is equal to B. हमने शो करना है कि A B के बराबर है, right? So पावर सेट ऑफ A is equal to पावर सेट ऑफ B है, तो मैं क्या करूंगा, इसको प्रूव करूंगा, इसमें एग्जाम्पल नहीं देना है। देखिए बेटा, एग्जाम्पल उसमें देना है जो चीज आपको कंफर्म नहीं है कि वो ट्रू है, ठीक है? सो इस क्वेश्चन में आपको ये शो करना है, सो इट इज श्योर दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट? सो यू हैव टू शो दैट A इज इक्वल टू B। अगर PA PB के बराबर है तो A B के बराबर शो करना है, ठीक है? सो हम इसको जनरली प्रूव करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। मैंने यहाँ से इसको मैं कैसे प्रूव करूंगा, A इज इक्वल टू B को A सबसेट B एंड B सबसेट A, थ्योरम यूज करूंगा और A इज इक्वल टू B प्रूव कर दूंगा, ठीक है? सो मैंने इसमें क्या किया था, मैंने x स्मॉल x लिया था,
देखिए आपको ध्यान रखना है स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स, कैपिटल लेटर्स जो हैं वो सेट्स को डिनोट करते हैं और जो स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं वो एलिमेंट को डिनोट करते हैं। ठीक है, सो इस ए सेट ए है, इसमें से मैंने एक एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड से बिलोंग करवा दिया। अब ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दूं, अगर मैं ब्रैकेट्स लगा दूं तो ये ए का सबसेट बन जाएगा कि नहीं बनेगा। जैसे मेरे पास ए में 1,2 एलिमेंट्स हैं, अगर वन जो है ए को बिलोंग कर रहा है तो अगर मैं 1 के साथ ब्रैकेट लगा दूं तो वो ए का सबसेट होगा। अंडरस्टूड? सो सिमिलरली आई एम टेकिंग हियर एक्स ब्रैकेट सबसेट ए। अब अगर कोई सबसेट ए का है, ए का सबसेट है, तो वो पावर सेट का एलिमेंट होगा। क्या होगा? एलिमेंट। यानी कि मैं इसमें बिलोंग्स टू का सिंबल लगा के पी ए लिख दूंगा। ठीक है, पी ए मतलब पावर सेट। अब पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी के बराबर है, तो मैं इसमें लिख दूंगा एक्स ब्रैकेट बिलोंग्स टू पी बी, पावर सेट ऑफ बी। अब अगर कोई एलिमेंट पावर सेट को बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट उसका सबसेट होगा। किसका? अपोजिट चल पड़ो, बी का सबसेट होगा। अगर कोई ये बी का सबसेट है, इसका मतलब ये जो एक्स था ये बी में है, बी को बिलोंग कर गया। राइट? सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ए जो है देयरफॉर ए बी का सबसेट प्रूव कर दिया हमने कि ए बी का सबसेट है। क्लियर? सो देखिए, जब भी आपको कोई भी जनरली अलजेब्रिकली प्रूव करना है तो आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सी थ्योरम यूज कर रहे हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम प्रॉपर्टीज से कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हम अलजेब्रिकली यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे अलजेब्रा यूज किया हमने ऐसे। अब हम क्या प्रूव करेंगे? वी आर yes similarly now we have to prove कि b a का सबसेट है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं? अगेन लेट y belongs to b, राइट? सो अब मैं इसमें सेम प्रोसीजर अप्लाई कर रहा हूं। y ब्रैकेट इट इज सबसेट ऑफ b, एरोज ऐसे लगाते जाओ, सिंगल एरोज। y ब्रैकेट it belongs to the power set of b, और पावर सेट ऑफ b किसके बराबर है? पावर सेट ऑफ b है पावर सेट ऑफ a के बराबर, तो इसलिए इसको pa लिख दिया। और अगर ये पावर सेट को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये जो y ब्रैकेट वाला है ये a का सबसेट है। अगर ये a का सबसेट है तो y a में है, यानी कि a को बिलोंग करेगा। अगर y a को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स देयरफॉर B is also the subset of A. This is equation number 2. Then at last from 1 and 2 we have A is equal to B. From 1 and 2 A is equal to B. Proved. Clear? तो आपको ये चीज ध्यान रखने की, पावर सेट पहले बेसिक पता होना चाहिए पावर सेट होता क्या है। पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, यानी कि जो पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे जो किसी सेट के सबसेट होंगे वो पावर सेट के एलिमेंट बन जाएंगे। क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये वीडियो आपको 1 या 2 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो ओके, थैंक यू।